Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑब्यूटरी टॉपिक के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर नवंबर मंथ। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, नोट्स ज़रूर बना के चलना। काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ नोट्स ज़रूर बनाना आज की वीडियो में। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं, एक एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करें। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी इन मलयालम। कौन है ये? और इनकी बायोग्राफी का नाम रहेगा नीलावू कुडीचा हांगल। राइट, ये इसरो के चेयरमैन हैं। क्या नाम रहेगा इनका? एस सोमनाथ। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मलयालम लैंग्वेज में रहेगी, एंड ये इसरो के चेयरमैन रहेंगे एस सोमनाथ। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो कि जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, इनके द्वारा भी रिलीज़ की गई। तो क्या नाम रहेगा, किनके द्वारा ऑथर की गई है ये बुक? ऑथर का नाम पूछा गया आपसे, ज़रा बताइए, हु इज़ दैट ऑथर? वो है कैप्टन हिमाद्री दास। राइट, ये बुक कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा ऑथर की गई है। करेक्ट, रिलीज़ की जाएगी जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। एंड इस बुक को इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 23 ये अभी हुआ था, मानेकशा सेंटर में हुआ था न्यू दिल्ली में। इसके दौरान इसको यहाँ पर अभी रिलीज़ किया गया। ये एक 3 डे लॉन्ग IPRD 3 डे लॉन्ग रीजनल स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, एंड इंडियन नेवी का ये डायलॉग था, जो कि 15 से लेकर 17 नवंबर तक होस्ट कराया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ हैव कंपाइल्ड एंड एडिटेड द बुक स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट वाज रिलीज्ड बाय सुखविंदर सिंह सुक्खू, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्या नाम रहेगा उनका जिनके द्वारा इस बुक को यहाँ पे कंपाइल किया गया, जिसका नाम है स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो उमेश कुमार भारती एंड DD भिष्ट के द्वारा इन बुक्स को यहाँ पे एडिट किया गया एंड कंपाइल किया गया, स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड सुखविंदर सिंह सुक्खू, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनके द्वारा इस बुक को यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। उमेश कुमार भारती की बात करें तो इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2019 में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज़ हैव ऑथर्ड द बुक मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया रिलीज्ड बाय कलानिधि डिवीजन ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन नवंबर 2023? राइट ऑप्शन है रामेश चंद्र गौर एंड विस्मय बासु। राइट, इनके द्वारा यहाँ पे ऑथर की गई बुक मैपिंग ऑफ आर्काइव्स इन इंडिया, एंड इसको रिलीज़ किया गया था कलानिधि डिवीजन ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा नवंबर में। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक थ्रेड बाय थ्रेड
द एस कुमार स्टोरी, जो कि रिलीज़ की गई बाय फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कपिल देव के द्वारा। तो कौन है ये है सत्य सरन, राइट। सत्य सरन ये बुक को ऑथर किया गया, सत्य सरन ने बुक को ऑथर किया गया जो है थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार स्टोरी। एस कुमार कौन है ये? शंभू कुमार कासिलवाल, ये फाउंडर हैं, को फाउंडर है ऑफ द एस कुमार ग्रुप के, करेक्ट। द फैब्रिक ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग ब्रांड ऑफ इंडिया सिंस 1948। ठीक है, तो इनके ऊपर ये बुक यहाँ पे लिखी गई है। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक? प्रणब माय फादर आर डॉटर रिमेंबर्स। तो आर डॉटर रिमेंबर्स हैं तो इनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया, राइट। इनके बारे में प्रणब मुखर्जी जो कि इंडिया के फॉर्मर 13th प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनके बारे में यहाँ पे इनकी लाइफ के ऊपर में बताया कि कैसे एक छोटी से विलेज से इन्होंने अपना पाथ बनाया एंड फिर ये प्रेसिडेंट बने इंडिया के। एंड इनकी 88th बर्थ एनिवर्सरी पे जो कि थी 11 दिसंबर 2023 को, ये बुक को यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, अब ये तो थे फ्रेंड्स बुक्स एंड ऑथर्स। अब आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। बांग्लादेशी ब्रिटिश क्लाइमेट साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। कौन है ये है सलीमुल हक, राइट। क्लाइमेट साइंटिस्ट एंड बांग्लादेशी क्लाइमेट साइंटिस्ट, बांग्लादेशी ब्रिटिश क्लाइमेट साइंटिस्ट है। 71 की एज में बांग्लादेश ढाका में निधन हो गया। कब बॉर्न हुए थे? कराची पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे 2 अक्टूबर को 1952 में। बांग्लादेशी ब्रिटिश क्लाइमेट साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर। नेक्स्ट, पद्माश्री अवॉर्डी लीला ओमचेरी, अ म्यूजिकोलॉजिस्ट राइटर, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इन विच ईयर डिड शी रिसीव पद्माश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स? तो इनको पद्माश्री अवार्ड से लीला ओमचेरी जी को कब सम्मानित किया गया था? 2009 में सम्मानित किया गया था इनको, करेक्ट। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में एंड अब इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 94 इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, इन नवंबर धुरबा नारायण घोष, दैट इज DN घोष, ये फॉर्मर चेयरमैन थे, दैट इज द 12th फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI बैंक, जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है, DN घोष। नेक्स्ट, सुब्रता रॉय, ये फाउंडर एंड चेयरमैन है ऑफ विच कंपनी के, जिनका निधन हो गया। काफ़ी फेमस कंपनी थी, बीच में डूब भी गई थी ये कंपनी, काफ़ी लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ था। कंपनी का नाम है सारा इंडिया परिवार, राइट। इनके इनके फाउंडर एंड चेयरमैन थे, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 75 इन मुंबई महाराष्ट्र। बिहार में इनका जन्म हुआ था, करेक्ट, सुब्रतो रॉय। नेक्स्ट, पद्मा विभूषण अवॉर्डी पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय, द डॉयन ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी, पास्ड अवे इन November 2023। इन विच फील्ड डिड ही रिसीव द पद्मा विभूषण अवार्ड इन द ईयर 2008? तो याद रखेंगे, पद्मा विभूषण अवॉर्डी पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय, द डॉयन ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी, इनका रिसेंटली निधन हो गया और इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री में यहाँ पे पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था इन 2008। नेक्स्ट, इन नवंबर पद्मनाभा बालाकृष्ण आचार्य, फॉर्मर गवर्नर ऑफ डैश स्टेट फ्रॉम द पीरियड जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। तो पूछा जा रहा है ये पद्मनाभा बालाकृष्ण आचार्य ये फॉर्मर गवर्नर है किस स्टेट के? तो ये नागालैंड के फॉर्मर गवर्नर थे एंड जुलाई 2014 से जुलाई 2019 के बीच में ये गवर्नर रहे थे नागालैंड के, और इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट, रियोन्ड आर्ट हिस्टोरियन एंड पद्मा अवॉर्डी ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, इनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है किस फील्ड में इन्होंने पद्मा भूषण रिसीव किया था 2008 में? तो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, इनको पद्मा श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 1998 में इन द सेम फील्ड लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट, बुकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर डेम एंटोनिया सुजैन बायट, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, राइट। इनके बुक का नाम रहेगा पोजेशन आर रोमांस, राइट, ये बुक का नाम रहेगा। इसने अभी बुकर प्राइज जीता फॉर फिक्शन इन 1990, राइट। पोजेशन आर रोमांस, इस बुक ने यहाँ पे बुकर प्राइज जीता था इन फिक्शन इन 1990। डेम एंटोनियो सुजैन बायट, और इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट, इन नवंबर डैश द फॉर्मर 18th गवर्नर ऑफ RBI पास्ट अवे, तो सुब्रमण्यम वेंकटरमन, राइट, सुब्रमण्यम वेंकटरमन ये फॉर्मर 18th गवर्नर हैं RBI के, इनका रिसेंटली निधन हो गया।
नेक्स्ट, पद्मा अवॉर्डी एंड एमिनेंट वेट्रोरेटिनल सर्जन डैश द फाउंडर ऑफ शंकरा नेत्रालय अकेडमी, निधन हो गया। तो कौन है फाउंडर ऑफ शंकरा नेत्रालय अकेडमी? वो है एस बद्रीनाथ। इनका रिसेंटली निधन हो गया। पद्मा अवॉर्डी है एंड एन एमिनेंट वेट्रोरेटिनल सर्जन। एंड ये पहले इंडियन डॉक्टर बने थे या पहले इंडियन बने थे जिन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस रिसीव किया, डॉक्टर ऑफ साइंस अवार्ड, जो कि है होनोरिस कॉसा अवार्ड। नेक्स्ट, इन नवंबर डैश मिस्टर इंडियन टाइटल होल्डर इन 1970 एंड बॉडी बिल्डर ऑफ मणिपुर पास्ट अवे। वो है नॉकथोम्बम माईपाक। ये मिस्टर इंडिया रह चुके हैं एंड 1970 में ये मिस्टर इंडिया रहे थे, करेक्ट। एंड ये बॉडी बिल्डर हैं फॉर मणिपुर, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, इन नवंबर जस्टिस डैश फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु पास्ट अवे, एम फातिमा बीवी, राइट। शी वॉज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 96 इन कोल्लम, केरला। एंड ये पहली मुस्लिम वीमेन जज बनी थी टू बी अपॉइंटेड टू एनी हायर जुडिशरी। Next, in November, a renowned Indian violinist and Carnatic musician B. Shashi Kumar recently passed away. ठीक है। Next, renowned Gujarati photojournalist and Padma Shri awardee Zaveri Lal Dal Patram Mehta passed away in November 2023. In which year did he receive Padma Shri award in the field of literature and education? So, renowned Gujarati photojournalist and Padma Shri awardee Zaveri Lal Dal Patram Mehta passed away. And remember, in which year did he receive Padma award? He received this Padma Shri award in 2018 in the field of literature and education. And this Padma Shri is the 4th highest civilian award. Next, in November, Dash Canadian TV producer and Lifetime Achievement Emmy Award winner of 2018 passed away, Marty Croft. Next, in November, C.K. Gopinath, director on the board of Dash Bank, passed away. So, C.K. Gopinath was the director on the board of Dhanlakshmi Bank, who recently passed away. Correct. So, these are your important current affairs for the topic, friends, books and authors and obituary for November month. If you like the session, do like the video and comment below and let us know what are your views for the same. Now let's move to some other revision current affairs that will be very beneficial for your learning. नेक्स्ट है आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर रंजन एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ डैश बैंक। तो याद रखेंगे आरबीआई ने अभी चंद्रशेखर रंजन की अपॉइंटमेंट अप्रूव करी है एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। मार्क करेंगे, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के ये बन गए हैं नए पार्ट टाइम चेयरमैन। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? तो ये प्रकाश आप्टे, इनको रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया ओसाइरस एपेक्स, जो कि है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी अपोफिस एक्सप्लोरर। ये और ओसाइरस एपेक्स ये बेसिकली मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि 2029 में एक एस्ट्रॉयड अर्थ के साथ से फ्लाई ऑफ करेगा, राइट, फ्लाई बाय करेगा। तो उस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था और उस एस्ट्रॉयड का नाम रहेगा अपोफिस, राइट। तो याद रखेंगे अपोफिस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए जो 2029 में फ्लाई बाय करेगा अर्थ से, उसको स्टडी करने के लिए नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम रहेगा ओसाइरस एपेक्स। नेक्स्ट, अभी एक फ्रेंच पॉलिटिशियन डैश हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन 1985 से 1995 के बीच में इनका निधन हो गया। तो क्या नाम रहेगा उनका? वो है जैक्स डेलॉर्स, राइट। ये वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के 1985 से 1995 के बीच में, जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 इन पेरिस, फ्रांस। विच IIT कोलैबोरेटेड विद रिलायंस जियो टू डेवलप भारत जीपीटी, जो कि एक जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर प्रोग्राम रहेगा, राइट, सिमिलर टू दैट ऑफ अ चैट जीपीटी। तो ये भारत जीपीटी लॉन्च करने की बात की गई। यहाँ पे IIT बॉम्बे ने रिलायंस जियो के साथ टाई अप किया ताकि इस भारत जीपीटी को डेवलप किया जा सके। फिर इसी के साथ साथ और एक चीज़ याद रखेंगे, IIT गुवाहाटी ने गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ यहाँ पे टाई अप करा ताकि बच्चों को
स्टेम सब्जेक्ट्स में प्रमोट करने के लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें एंड अपना फ्यूचर इन सब्जेक्ट्स में बनाएं। इसीलिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, आरोहण स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। तो इस आरोहण स्कीम के अंडर IIT गुवाहाटी ने गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ टाइप किया ताकि स्टेम सब्जेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। फर्स्ट एवर UN वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब कब? तो पहली बार वर्ल्ड में 2023 में ये UN वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑब्जर्व किया गया। और कब ऑब्जर्व किया गया? 31 दिसंबर 2023 को पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है विद रिस्पेक्ट टू 5th लीड्स सर्वे रिपोर्ट, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के द्वारा रिलीज की गई दिसंबर 2023 में। तो ये 5th लीड्स रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। 13 स्टेट्स एंड यूटी, जिसमें से 11 स्टेट्स और 2 यूटीज, इनको कैटेगराइज किया है एंड हैव बीन नेम्ड एज अचीवर्स इन द लीड्स सर्वे रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, दे आर कैटेगराइज्ड एज अचीवर्स अमंग द कोस्टल स्टेट्स इन दिस 5th लीड सर्वे रिपोर्ट। एंड हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, यूपी, इनको कैटेगराइज किया अचीवर्स इन द अमंग द लैंडलॉक्ड स्टेट्स अंडर दिस 5th लीड सर्वे रिपोर्ट। तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जीका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, राइट, टू ऑफर जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन्स टोटलिंग अमाउंट कितना? 415,301 Japanese yen for the construction of Mumbai Ahmedabad high speed rail as well as sustainable development goals in India। तो दो प्रोजेक्ट्स रहेंगे। पहला है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसमें हम देखेंगे ऑलमोस्ट 400,000 जैपनीज येन यूज किए जाएंगे। और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, इसमें बचा हुआ अमाउंट 15,301 जैपनीज येन को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज recently been appointed as the first ever global brand ambassador of Bisleri International Private Limited। तो बिस्लरी क्या है हम जानते हैं, ये एक वाटर बॉटल ब्रांड है, पानी मिलता है, करेक्ट। तो बिस्लरी ब्रांड की अभी रिसेंटली कौन बनी है नई ब्रांड एम्बेसडर? वो है दीपिका पादुकोण। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स टेकन बाय सेबी इन दिसंबर 2022? अगर दिसंबर 2023 अगर देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। सेबी ने नोटिफाई किया अ प्रोसीजर फॉर द पब्लिक इशुएंस ऑफ ZCZP, जो कि है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिस्टिंग ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सही। NPO वाया लेड मैनेजर सबमिट्स द ड्राफ्ट फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट टू द रजिस्टर्ड SSC with specified fees and an application for in principle approval, and the draft document is posted on both SSC and organization's website for a minimum of 20 days for public comments। बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है सेबी ने अलाउ किया स्टॉक ब्रोकर्स टू सेटल देयर क्लाइंट्स फंड्स लाइंग इन द ट्रेडिंग मेंबर्स ऑन सैटरडेज, दैट इज ऑन वन मोर डे इज प्रोवाइडेड फॉर द सेटलमेंट। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's लिस्ट ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स, जो कि रिलीज की गई दिसंबर 2023 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स विल नीड टू मेंटेन हायर कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025? तो याद रखेंगे SBI एंड HDFC बैंक, इन दोनों को यहाँ पर हायर कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। नेक्स्ट, इन दिसंबर डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। तो CISF की अभी रिसेंटली कौन वो पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। वो है नीना सिंह, पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। फिर अनीश दयाल सिंह, याद रखेंगे अनीश दयाल सिंह, इनको यहाँ पर रिसेंटली अपॉइंट किया गया फुल टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ राहुल रसगोत्रा, ये बनाए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। ठीक है, मार्क करेंगे। ठीक है। तो 14 चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज एस्ट्रा शक्ति 2023 जो दिसंबर में हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों आपके ठीक रहेंगे। ए गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी ना एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका में, ओडिशा में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में। अब आपका ऑप्शन ABC तीनों ठीक रहेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप देखें ऑप्शन बी कह रहा है ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज
इंडियन एयरफोर्स ने शोकेस किया आकाश वेपन सिस्टम को, जो कि एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, बिल्कुल सही। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर फिर टेस्ट फायर किया समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को, जो कि एंगेज कर सकता है एरियल थ्रेट्स विद अ स्पीड रेंज ऑफ 2 to 2.5 मैक। तो तीनों ऑप्शन अब यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, विच टीम वन द विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल बाय डिफीटिंग राजस्थान मैन क्रिकेट टीम इन द फाइनल। सबसे पहले विजय हजारे ट्रॉफी किस गेम से होती है? ये क्रिकेट से होती है, ठीक। कौन सा एडिशन हुआ था अभी विजय हजारे ट्रॉफी का? 21st एडिशन हमें देखने को मिला था विजय हजारे ट्रॉफी का। 23 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में था। 38 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और टोटल 135 मैचेस खेले गए थे, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है इस बार राजस्थान को फाइनल्स में हरा के? तो हरियाणा के द्वारा, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हरियाणा के द्वारा यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली गई है राजस्थान टीम को फाइनल में हराकर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक इन दिसंबर, डैश कंट्री हैज टॉप्ड द रेमिटेंस चार्ट विद एन एस्टिमेटेड इनवर्ड रेमिटेंस फ्लो ऑफ $125 बिलियन। तो देखो, इनवर्ड रेमिटेंस होता है एक होता है आउटवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब पैसा दुनिया से हमारे इंडिया में आ रहा हो, तो ये हो जाता है इनवर्ड रेमिटेंस। आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब इंडिया का पैसा दूसरी कंट्रीज में बाहर जा रहा हो। तो अभी इंडिया ने टॉप किया है इनवर्ड रेमिटेंस में, $125 बिलियन का यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस हमें देखने को मिला, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में। फिर रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस एंड यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा। इन्होंने रिसेंटली एग्री किया टू एक्सटेंड देयर पार्टनरशिप फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय कंटिन्यूइंग क्रॉस फ्लाइट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंटिल 2025। पहले रशिया ने बोला था कि हम 2024 में एग्जिट कर देंगे इस कोलैबोरेशन को बिटवीन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिटवीन वेरियस कंट्रीज। तो यहाँ पे रशिया ने एग्जिट करने की बात की थी आईएसएस से, लेकिन अब वापस से हम देख रहे हैं ये कोलैबोरेशन एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनविसाइज्ड एज वन नेशन वन पास सिस्टम? इससे जो इंडिया की एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लॉजिस्टिक है इसकी, वो बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है, करेक्ट। तो याद रखेंगे, अभी रिसेंटली नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड जैसे मैंने बताया, इससे जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे टिम्बर का, बैम्बू का, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अक्रॉस इंडिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं डीईए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। 8% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? ये 8.2% कर दिया गया है फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024 फिस्कल ईयर 2024। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट है आरबीआई। इन्होंने रिवाइज किया पीआईडीएफ स्कीम को, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को। इसके अंदर आपने देखा होगा हर दुकान पे आपके बारकोड के साथ साथ एक साउंड बॉक्स लगा होता है, राइट। वो साउंड बॉक्स क्या काम का होता है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो जो आपका ऑनर है उनको पता लग जाए कि आपने पेमेंट कर दिया, एंड वो वॉइस करता है। तो ऐसे साउंड बॉक्स को लगाने के लिए ना सरकार इंसेंटिव्स देती है, सरकार ही यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो ये है आपकी पीआईडीएफ स्कीम, करेक्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इकोसिस्टम डेवलप कर सकें। सरकार के द्वारा ये कुछ यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने रिवाइज की पीआईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को, राइट, एंड एक्सटेंडेड द डेडलाइन अंटिल डैश। तो डेडलाइन कब तक एक्सटेंड कर दिया है? तो 31 दिसंबर 2025 तक इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2023। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ठीक रहेगा। ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे टॉप नहीं किया मेडल टैली में, बल्कि हरियाणा ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली विद 105 मेडल्स, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। ये इनॉग्रल एडिशन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, न्यू दिल्ली में हुआ था और हरियाणा ने टॉप कर लिया। शीतल देवी जो जम्मू कश्मीर की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द ओपन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आर्चरी इवेंट। फिर भाविना पटेल गुजरात की हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता इन द वीमेन सिंगल कैटेगरी ऑफ द क्लास 4 टेबल टेनिस इवेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया have recently won the FIH का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एंड FIH का वीमेंस
गोलकीपर ऑफ द ईयर टाइटल। तो अगर मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल की मैं बात करूं वो रहेंगे हार्दिक सिंह। वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर की मैं बात करूंगा तो वो रहेंगी सविता पूनिया। तो ऑप्शन 2 यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक 5,336 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोक्योर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस फॉर द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को प्रोक्योर करने की बात की गई, जिसके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5,336 करोड़ रुपए का। किस कंपनी के साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, राइट। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद रखेंगे, ये जो मैन्युफैक्चर करेंगे इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को वो करेगी पुणे महाराष्ट्र में। एंड इसी के साथ साथ एक नागपुर में भी प्लांट सेटअप किया जा रहा है, वहाँ पे इन दोनों जगह पर ही आपके इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली स्worn इन एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के 14th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो कौन बने अब 14th चीफ मिनिस्टर? वो है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा किन को रिप्लेस करेंगे? तो ये अशोक गहलोत को रिप्लेस करेंगे, जो कि 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के। किस बैंक ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक लोन अप्रूव किया $300 मिलियन का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फॉर द प्रोजेक्ट तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए? तो तमिलनाडु के क्लाइमेट रेजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अभी 300 मिलियन का एक लोन अप्रूव किया गया है। किस बैंक के द्वारा? तो ये लोन मिलेगा इंडिया को वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखो, हमेशा याद रखना, अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ग्रोथ के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक देगा। IMF पैसा देगा जब आपको कहीं से लोन चुकाना है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने अनवेल किया लोगो, जर्सी, थीम सॉन्ग ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में होंगे। तो ये 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मैस्कॉट रहेगा उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, क्या रहेगा? वो है वीरा मंगाई, राइट। अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया 6ठा एडिशन रहेगा ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और कहाँ पर होंगे ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स? चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डैश हु वन द 1987 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमीज पास्ड अवे। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डैश हु वन द 1987 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमीज पास्ड अवे, क्या नाम रहेगा उनका? वो है रॉबर्ट मैटॉन सोलो, राइट। ये वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जो 1987 में जिनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया था, उनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक लोन अग्रीमेंट साइन किया गया, कितनी जापानीज येन का? टू कंटिन्यू फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम को यहाँ पे डेवलप करने के लिए अभी कितना अमाउंट यहाँ पे लोन अग्रीमेंट साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ? तो अमाउंट रहेगा ये आपका 37 बिलियन जापानीज येन। इसको कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट आ जाता है $250 मिलियन, ठीक है। 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अब्दुल फतेह LCC, इनको रिलेक्ट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर द 3rd टर्म, तीसरी टर्म के लिए इनको यहाँ पे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कितने अमाउंट का? विद मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी। ये 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल पूछा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मडगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कितने अमाउंट का ये टाई अप साइन किया, कितने अमाउंट का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? तो याद रखेंगे अमाउंट रहेगी 1614.89 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसरो ने अभी 9th एडिशन ऑफ लीफ एरिक्सन अवार्ड को जीत लिया फॉर इट्स डैश मिशन। सो चंद्रयान 3 मिशन के लिए अभी इसरो ने यहाँ पर 9वां एडिशन ऑफ लीफ एरिक्सन अवार्ड को जीत लिया है, राइट। मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 17वें एमिर कौन अपॉइंट किए गए हैं? कुवैत के। हु हैज बीन स्worn इन एज द 17th एमिर ऑफ कुवैत? तो वो रहेंगे शेख मशल अल अहमद अल ज़ुबैर अल सबा। ये 17वें एमिर किंग अपॉइंट किए गए हैं कुवैत के। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.